राजीव जी, लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे कलर्ड स्टोन्स के ऊपर कि यार दिस ईयर इज फॉर ऑल स्टोन्स. व्हाट इज जयपुर प्लानिंग फॉर दिस ईयर्स जेम स्टोन्स? I think what we are doing this year, we are repeating the way what we did last year, because we have seen that there is a great potential in our own country of colored gemstones. Till now, we were exporting all colored gemstones from India, but अभी जो डिमांड देख रहे हैं और जो लोगों में उसके प्रति रुझान है कलर स्टोन के प्रति, that is tremendous, and people from all over the country, they are asking for color gemstone. May it be remote areas like northeast and south. अभी color stone सब जानने लगे. Even in this show today, I've seen lots of new stones which people were not aware of. Like we just, she was wearing a necklace of morganite. तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो तब बताया morganite. So I was very happy to see all different stones in Julie World show also. And one more thing which I have to ask, कि India's export is down in terms of gemstones, but क्या इंडिया की बाइंग हो रही है इंडिया के अंदर? आर वी बिकमिंग आत्मनिर्भर भारत फॉर gemstones? मैं ये बिल्कुल सही बात है. मैं ये मानता हूँ, मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ. मैं 25-30 साल से आज तक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. अभी सहीम भाई से मैं कह रहा था कि मैं भी डोमेस्टिक मार्केट में आना चाहता हूँ, बिकॉज आई सी अ ग्रेट पोटेंशियल इन डोमेस्टिक मार्केट. और आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है. जितना सोना हम यूज़ करते हैं उसका 2% भी अगर कलर स्टोन और डायमंड ज्वेलरी में बन के यहाँ बिकने लग जाए तो हमें एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो एमरल्ड्स, ब्लू सफायर्स एंड रूबी तो चल ही रहे थे, लास्ट ईयर भी काफ़ी चल रहे थे. आफ्टर योर प्रमोशन टू ऑल जेमस्टोन्स, व्हाट आर सम जेमस्टोन्स व्हिच हैज कम अप? Morganite is one stone, which is very important. Then citrine, amethyst, peridot, garnet, tourmaline family, the whole family. और अभी टोर्मलिन तो आप देखें जो हमारी नीता मानी जी ने जब टोर्मलिन पहना तो उसके बाद तो बहुत सारे हाउसेस से डिमांड आने लग गई कि वही टोर्मलिन चाहिए और वैसी ही चाहिए. और टोर्मलिन्स के प्राइसेस मोर देन 25% बढ़ चुके हैं in the last 1 year. Is that true? No, actually सप्लाई भी थोड़ी इराटिक है, बिकॉज टोर्मलिन, ये जो पर्टिकुलर टोर्मलिन है ये ब्राज़ील से आता है और वहाँ से काफ़ी कम निकलता है. So which means the price is going to be higher. It might go up in the future also. That is amazing. Tanzanite is a very beautiful stone. Yeah, from Tanzania. From Tanzania. Yeah. Is the only mine in the world. Yeah. One mine, one area. Yeah. तो वहाँ से निकलता है. Morganite, as I said. And then these opals, Ethiopian opals and Australian opals, because उसमें सारे कलर्स होते हैं तो हर कोई पसंद करता है कि मैं उस तरह का ओपल भी पहनूं. That is so. And before we end, congratulations on being the chairperson of JJS. कैसा लग रहा है? Thank you so much. नहीं, that is just a change of guard, and we are a very good team. और हम लोग सब साथ मिल के काम कर रहे थे, अभी भी करते रहेंगे. पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. So we are going gemstones for everyone 2026 and 2027. Yes. And I wish all my best to Julie World. Thank you so much. Thank you so much. Sean, you also congratulate him. Of course, it has to be both of them. Congratulations, Rajiv ji, for the Thank you. presidency at JJS. You have been in the team from a long time, but ये सिर्फ official ही है, and that will change a lot of things from before as well. I was very happy working as a secretary also from last 23 years. So chairman बन गया तो it doesn't make a difference. But thank you so much. Thank you so much, Julie World, for inviting. Thank you so much. Always was like a chairman. एक मिनट सर. राजू सर, एक सवाल है. आज जो मार्केट का जो स्ट्रैटेजी है, इतना गोल्ड का प्राइसेस और सिल्वर का प्राइसेस इतना बढ़ रही है, और कुछ लोगों का जो कि मार्केट जो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं मार्केटिंग को? मैं जब भी आपको बोल रहा था, कलर्ड स्टोन पिक्चर में जब भी आता है जब लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए होती है, क्योंकि बड़ा भी दिखने को चाहिए, जिसको पहनना है उसको बड़ा बड़ा दिखना चाहिए. हीरा महंगा, सोना महंगा, तो उसके साथ अगर कलर्ड स्टोन लगेगा तो वो भरपाई कर देगा और बड़े पीसेस उसी प्राइस में मिल सकेंगे. इसीलिए ये बढ़ रहा है. जी सर. और यहाँ से सेम सर, आज वर्ल्ड ज्वेलरी का एक शो हो रहा है
शो के जरिए ये मार्केट का स्ट्रैटेजी लेको क्या मैसेज देना चाहेंगे कस्टमर क्लाइंट को, कस्टमर को, विजिटर को सर? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे सोने का भाव 193 के बाद 145 148 करीब आ गया है, तो जितने ज्वेलर्स हैं जहाँ पर मैंने देखा कि टेम्पल ज्वेलरी हो गई, एंटीक ज्वेलरी जो येलो के अंदर है, जो ब्लैक फिनिश है उसके अंदर एक्सेलेंटली बनी हुई यहाँ पर दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि कस्टमर्स को भी बाइंग फेस के अंदर आ जाना चाहिए। हम ईयर ऑन ईयर अगर चार्ट्स देखेंगे, मैप देखेंगे, तो सोने का भाव जुलाई के अंदर जब बढ़ना शुरू होता है तब आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और 22 कैरेट के अलावा 14 कैरेट और 9 कैरेट की ज्वेलरी भी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और कस्टमर मांगने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव टाइम है ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए, ये जो ज्वेलरी वर्ल्ड के लिए, और शान और सोनिया जी पूरी टीम ने इतनी अच्छी तरह मेहनत की है इस एग्जीबिशन को आगे लेके जाके, और ईयर ऑन ईयर मैं देख रहा हूँ कस्टमर का उत्साह, और जब पूरे मुंबई के अंदर महीना डेढ़ महीना पहले ही कस्टमर्स बाइंग रोक कम कर देते हैं, बोलते हैं जब बाइंग आके करेंगे तो ज्वेलरी वर्ल्ड में आके करेंगे, सेंट रेगिस में आके करेंगे, और जिस तरीके से एंथुजियाज्म से पूरी टीम ने काम किया है और सारी एक अच्छा रिलेशन सारे कस्टमर्स के साथ बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बिज़नेस होगा, और जो भी यहाँ पर बाइंग करेगा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्वरूप से और डिज़ाइनिंग स्वरूप से, इन्वेस्टमेंट स्वरूप से 20% का फ़ायदा मिनिमम ईयर एंड तक मिलेगा, और डिज़ाइनिंग रूप से भी पूरे ईयर के अंदर ट्रेंड सेटर ज्वेलरी यहाँ पर मिलेगी। संयम भाई, जो मोदी जी कह रहे थे 2 साल पहले सोना मत खरीदो, पर चाइना ने हाईएस्ट बाइंग की है लास्ट 3 साल में, वो है इस क्वार्टर में। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए, मोदी जी ने कहा है पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री उनके साथ है। हमने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, कॉमर्स मिनिस्ट्री को, जहाँ पर हमने बोला था कि सोना इंटरनेशनल बाहर से नहीं आना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर अगर सोना 30,000 टन सोना इंडिया के पास है, तो अगर 1% यानी 300 से 400 टन सोना भी रिसाइकल हो सके गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तरफ से, ताकि हम 2.5 से 3% इंटरेस्ट लेडीज़ को दे सकें या फैमिलीज़ को दे सकें, उससे वापस रिसाइकल हो सकेगा गोल्ड, और ज्वेलर्स उसको इंटरेस्ट पे ले सके बैंकों के थ्रू, जैसे डीमैट थ्रू के रूट के अंदर। तो जो इंडिया के अंदर सोना है वो भी बिकता रहेगा, फॉरेन करेंसी से रुपी भी वीक नहीं होगा, डॉलर भी स्ट्रांग रहेगा, और आने वाले समय के अंदर जो इंडियन के अंदर रिसाइकल हुआ सोना, तो बाहर से सिर्फ जो 7.2 बिलियन या 7.3 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंडिया के अंदर आता है, उसको घटा के हम 3.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का करेंगे, ये हमारा टारगेट है। और ये चीज़ हमने बताई, आने वाले महीने डेढ़ महीने के अंदर हमें मिनिस्ट्री से काफ़ी संकेत मिले हैं कि पॉजिटिव तरीके से GMS जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है उसको वो लागू करेंगे, जिससे ये फ़ायदा होगा। और जो उनकी सोच है, उनकी ये सोच नहीं है कि इंडिया की जो लेडीज़ हैं, इंडिया के लोग हैं, वो सोना ना पहने या ज्वेलरी ना खरीदें, लेकिन बाहर से सोना नहीं आना चाहिए, तो वो चीज़ का हमने बराबर सोल्यूशन दिया है। So GMS gold monetization scheme is the elephant, but I also want to represent the tail. World Gold Council ने इंडिया एक्सप्लोरेशन चालू किया कि इंडिया में आपको सोना माइन करके मिलेगा। यस, इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है। कुछ माइंस हैं जो ऑलरेडी ऑन बिडिंग के लिए अवेलेबल हैं, और उसके अंदर कुल मिला के किसी के अंदर 3 टन या किसी के अंदर 8 टन गोल्ड मिल रहा है। माइनिंग कॉस्ट $1,400 to $1,700 की है पर आउंस, और मार्केट रेट अभी $4,050 चल रहा है, तो काफ़ी अच्छी मार्जिन्स भी हैं माइनिंग के अंदर। गवर्नमेंट को बहुत टाइम पहले खोलना चाहिए था, लेकिन ये सरकार काफ़ी प्रोएक्टिव है, इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। कुछ साउथ के अंदर माइंस हैं, कुछ जो ज़्यादा माइंस हैं, और अभी वो ओपन अप हो रही हैं, तो मुझे लगता है उससे भी 3 to 5% जो इंपोर्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर फ़ायदा होगा, और जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी उससे अच्छा फ़ायदा होगा, और गोल्ड के रेट्स बढ़ते रहेंगे तो माइनर्स एफिशिएंटली वो भी फ़ायदा कर सकते हैं। सो दिस इज वन स्टेप क्लोजर फॉर आत्मनिर्भर भारत इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। देखिए, 800 टन सोना इंडिया के अंदर हर साल 750 से 800 टन सोना लगता है। 8 से 10 टन सोना यानी 2 से 3% सोना माइनिंग के थ्रू आएगा, तो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर दिस माइनिंग थिंग टू जंप अप। तो लेट अस सी किस तरीके से होता है, और हो सकता है कि और कोई छुपी माइंस हों जो डिस्कवर की जाए, और जिससे जो 2% से कम 10% पे भी अगर हम आ गए तो उससे भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सईम भाई। थैंक यू। सो वी हैव द सिल्वर किंग विद अस, जिगर भाई, who has been in the silver industry for the longest time. What is the future of silver? Is it for the Gen Z or is it for the millennials? सही क्वेश्चन में एक ही आंसर है कि आने वाले सालों में सिल्वर गोल्ड की जगह लेने वाला है,
और गोल्ड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो 9 कैरेट, 14 कैरेट और 18 कैरेट का जो उसका प्लानिंग है उसमें आगे बढ़ेगा। और सिल्वर 925, 75 और 57 टच में गवर्नमेंट BIS मैंडेटरी करके उसको आगे बढ़ाएगी। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही भारत की मूलभूत जो पुरानी परंपराओं के साथ जुड़ा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसमें आत्मनिर्भरता के साथ बढ़ोतरी होने वाली है। जिगर भाई, चांदी से लोग डर चुके हैं। 44% करेक्शन आया है लास्ट 3 मंथ्स में। व्हाट वुड यू वांट टू से हु वांट्स टू बाय सिल्वर बट दे आर स्कैर्ड? सबसे पहली बात तो चांदी से कोई डरा नहीं है, ऊपर से चांदी की बाइंग बढ़ रही है, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। आज वर्ल्ड के अंदर भी सब जानते हैं कि चांदी जब भी कॉलप्स होती है तो 50% तक कॉलप्स होती है और जब भी वो आगे बढ़ती है तो 75% के ग्रोथ के साथ वो आगे बढ़ती है। 4.5 यानी कि 4.5 लाख का भाव आने के बाद चांदी आज 2.5 लाख चल रही है। 2 लाख के अंदर मेरे हिसाब से ये सब बाइंग का रेट है और आने वाले सालों में अपने 4.5 भाव का देखेंगे, यानी यहाँ से करीबन 100 गुना 100% भाव आपको दुगना मिल सकता है। तो फिर से एक बार बोलूँगा, सिल्वर हो या गोल्ड हो, कोई भी मेटल हो, अभी बाइंग की उत्तम तकनीक और भाव मुझे यहाँ पे लग रहा है। थैंक यू जिगर भाई। थैंक यू। थैंक यू सर। और एक सर जिगर सर बोलिए। सर जिगर सर, जो आज सिल्वर का भाव है और गोल्ड का इतना भाव है, लेकिन इसका जो सिल्वर का जो रिटर्न जो सेकंड रिटर्न में किस तरह देखते हैं सर सिल्वर के? सर सिल्वर का रिटर्न देखने जाए तो बहुत ही बढ़िया है। 925 सिल्वर के ऑर्नामेंट से लेके यूटेंसिल्स, पहले क्या था कि हमारे यहाँ सिर्फ यूटेंसिल्स के अंदर ही उसको यूज़ होता था। आज सिल्वर जिस तरीके से दाम बढ़ रही है, चांदी के यूटेंसिल्स के साथ साथ ऑर्नामेंट्स, फर्नीचर्स यदि काफ़ी चीज़ों के अंदर उसका बढ़ावा हुआ है। पहले अपने मालूम है कि जब शादियों के अंदर कोई भी अपने को चढ़ावा करते थे तो गोल्ड के अंदर करते थे, आज उसका स्थान सिल्वर ले चुका है। अपने घर के अंदर 3 फंक्शन होते हैं तो लोग एक फंक्शन के अंदर डायमंड और गोल्ड और बाकी 2 फंक्शन के अंदर आज सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बढ़ रहे हैं। यानी 925 सिल्वर का बढ़ावा इतना बढ़ चुका है कि 500% के हिसाब से मुझे उसका बढ़ावा बढ़ा हुआ है। आने वाले सालों में इंडिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई गोल्ड की तरह सिल्वर के भी शो होंगे, तो आज भारत के अंदर सिल्वर के शो गोल्ड की तह पर 250+ स्टॉल के साथ हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्यूचर के अंदर गोल्ड और सिल्वर दोनों इक्विलेट के साथ आगे बढ़ेंगे और उसका फ्यूचर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? 9th एडिशंस ज्वेलरी वर्ल्ड शो अहमदाबाद और पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, सोनिया चावला एंड देयर एंटायर टीम, आई हार्डली कंग्रेचुलेट। मैं गुजरात रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे गुजरात के अंदर ज्वेलरी का जो दबदबा हमने देखा हुआ है, वही दबदबा हमने आज मुंबई के अंदर ज्वेलरी वर्ल्ड के शो के अंदर देखा हुआ है। उत्कृष्ट ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चरिंग के हब भारत के 5 जाने जाते हैं, उनमें से एक है मैं मुंबई, और मुंबई के अंदर B2C का ये शो, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज 40+ स्टॉल के साथ ये जो शो है, जिसके अंदर गुजरात के करीबन 10 स्टॉल आ चुके हैं, यानी दिन प्रतिदिन सालों साल ज्वेलरी वर्ल्ड के अंदर गुजरात अहमदाबाद से भारतवर्ष के अंदर हमारा बाहर जाना तय हो चुका है। और स्पेशली ज्वेलरी वर्ल्ड यानी सोनिया चावला उनकी टीम के साथ इसीलिए हम आते हैं क्योंकि हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट मिलता है, कस्टमर व्यूअरशिप मिलती है, और उनके साथ उनके द्वारा बुलाए गए गेस्ट ऑलवेज हमें प्रीफर भी करते हैं, हमारी ज्वेलरी की से खरीद भी करते हैं, और यदि उनको कुछ अच्छा न लगे तो उनमें एक सजेशन भी देते हैं कि भैया इस तरह की ज्वेलरी आप हमें प्रमोट करें तो शायद नेक्स्ट टाइम हम आपसे ले पाए। तो काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे मिलता है और इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो आई थैंक्स टू मिस्टर सोनिया चावला, अर्जुन जी और उनकी पूरी टीम को मैं अभिनंदन हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये शो जो 9th एडिशन है वो शॉर्ट टर्म में 1 या 2 शो होते हो तो करीबन सालाना 4 शो करे, जिससे लोगों की प्रतिक्रिया और बाइंग ज़्यादा बढ़ पाए। और गेस्ट पहनते भी है जूते। गेस्ट तो पहनते भी है, बाइंग करते हैं और सजेशन भी करते हैं कि भैया नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा कुछ लेके आइए। और हमारे साथ गुरप्रीत जी है, जिनको मैं करीबन 4 साल से हमारे साथ देख रहा हूँ। मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ क्योंकि हमारे यहाँ से ज्वेलरी उनको भी बाइंग होती है और उनके सजेशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो हमारे फ्यूचर डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो थैंक यू गुरप्रीत जी फॉर योर काइंड सजेशंस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सोनिया जी फॉर योर इन्वाइटिंग अस इन मुंबई। थैंक यू सो मच। Thank you so much, guys. Thank you for coming.